Alright, so we have seen two sets till now. Let's have a look at the third set. The data is on the screen. I will get out of the screen so that you can read the whole data. 25 colored beads are to be arranged in a grid comprising of 5 rows and 5 columns. Each cell in a grid must contain exactly one bead. Each bead is colored either red, blue or green. While arranging the beads along any of the 5 rows or along any of the 5 columns, the rules given below are to be followed. So there are some rules given, right? It does not seem so difficult because the rules are only 3, correct? So I'll give you about 3 minutes for you to familiarize with the rules and then we will go to the questions, right? So pause the video for about 3 minutes, read the entire data and resume when you're done. Okay, so I hope by now you are done with the data, right? Let us go to the questions. The first question is the total number of possible configurations using beads of only 2 colors is what? Only 2 colors. And that's the first question. So the level of difficulty would be easy to moderate. I'm going to give you about 2 minutes. Pause the video for 2 minutes. Try this question on your own. It's not difficult. The level of difficulty is easy to moderate, more on the side of easy. So you should be able to do it in 2 minutes. So pause the video for 2 minutes. Resume when you're done. Alright, so I hope by now you are done with this question and you have your answer in your hand. Just mention it somewhere. We will move forward to the next question. Question number 2. What is the maximum possible number of red beads that can appear in any configuration? So you are supposed to maximize the number of red beads. That's the question number 2. Once again, I would not say this is difficult. This is easy to moderate only. Take 2 minutes, pause the video for 2 minutes and try to solve it on your own. Resume when you are done. Alright, so I hope by now you are done with this question as well. That was a theta question as well. That is, type in the answer. Question 3. What is the minimum number of blue beads in any configuration? What is the minimum number of blue beads in any configuration? So you are supposed to minimize the number of blue beads this time. Once again, easy to moderate. Take 2 minutes, not more than that. Pause the video, resume when you are done. Okay, so I hope by now you are done with this question as well. Question 4. 2 red beads have been placed in second row third column and third row second column. How many more red beads can be placed so as to maximize the number of red beads used in the configuration? That's an interesting question. So I'm going to give you 2.5 minutes, right? Not more than that, and level of difficulty remains the same. This is easy to moderate, more on the side of easy, but if you have got the crux of the question, then right. So take 2.5 minutes, pause the video, try to solve on your own, get to the answer and then resume. If you have not been able to answer any of the previous questions, I ask you to take 2 minutes more per question so that when we solve, you are just verifying your answers and you're not solving for the first time. So pause the video, resume when you're done. Alright, so I hope by now you are done with all the 4 questions. Now that was this was an interesting question from CAT 2020 paper, right? Interesting as in this was something new. This sounds something like permutation combination, replacing stuff, correct? Kind of asked for the first time in CAT in DI, LRDI section. Otherwise this looks like a quant question, right? Possibilities and probabilities. So this looks like a quant question. So let's get back to the data. Let's understand it once again. Okay, so 25 colored beads are to be arranged in a grid comprising of 5 rows and 5 columns. So there is a 5 cross 5 grid. So let me just mention it. Okay. Must contain exactly one bead. Each cell must contain exactly one bead. So there are no empty cells. Everyone please remember, there are no empty cells. Each bead is colored either red, blue or green. So either we have red or green or blue. While arranging the beads along any of the 5 rows or along any of the 5 columns, the rules given below are to be followed. So there are some rules that we need to follow. What are the rules? The first rule, 2 adjacent beads along the same row or column are always of the different colors. That means if I have R here, I cannot have R here. Right? Very simple.
I cannot have R surrounding that, right? Okay, that is rule number 1. Rule number 2, there is at least one green bead between any two blue beads. This is interesting. अगर ये ब्लू है, अगर ये भी ब्लू है, so यहां पर you need at least one green. देखिए, at least one, दो भी हो सकते हैं, so it can be like this as well. Similarly, it can be like this as well, BGB or BGGB. That is rule number 2. Anyway, in any way, there should be at least one green between two blues, either vertically or horizontally. That was rule number 2. Rule number 3, there is at least one blue and at least one green bead between any two red beads along the same row or column. Interesting. This is interesting. क्या बोल रहे हैं? At least one blue and at least one green between red. So it's like this कि अगर आप यहां पर red है, so एक green और एक blue तो होना ही चाहिए, एक green एक blue तो होना ही चाहिए, and then you can have red. Minimum, at least. This part is at least. मतलब उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. Correct? These are the rules. Interesting. Every unique and complete arrangement of 25 beads is called a configuration. Configuration किसको बोलते हैं? एक arrangement जिसमें सारे rules follow हो, that is called a configuration. So see, rules are not that complicated. Rules are pretty simple. दो आर के बीच में कम से कम दो जगह होनी चाहिए, दो ब्लू के बीच में कम से कम एक जगह होनी चाहिए, and so on. So I think we can simply solve it, right? Let us go to the first question. The total number of possible configurations using beads of only two colors is what? Please understand, you want to use only two colors. The colors I have available are R, green G, and blue cup B. You are only supposed to use only two of them, correct? Only two of them. You can't use all three. For example, if I choose R as one of the colors, प्रॉब्लम इज के R और दूसरे R के बीच में एक ग्रीन और एक ब्लू तो होना ही चाहिए. सो आई विल एंड अप यूजिंग दीज बोथ, विच आई कैन नॉट डू, राइट? इफ अगर हम R को चूज करते हैं तो हमें एक R और दूसरे R के बीच में एक ग्रीन और एक ब्लू रखना ही पड़ेगा. इसका मतलब हम R को चूज ही नहीं कर सकते, हम R को सिलेक्ट ही नहीं कर सकते. वी हैव टू यूज दीज टू, green and blue. We have to use these two. Now, total number of possible configuration using only two colors, correct? So let's try to do that. Okay, so this is my 5x5 grid. Okay, now what was the rule regarding green and blue? So second rule देखिए, there is at least one green between two blue. Okay, so इधर आते हैं. If I say that this is blue, correct? और अगर मैं यहाँ एक green रख देता हूँ, फिर इधर blue, फिर green, फिर blue, then यहाँ पर green, यहाँ पर green, यहाँ पर green, यहाँ पर blue and blue, यहाँ पर green, यहाँ पर blue, यहाँ पर green, यहाँ पर blue, G, B, but G, B, G, B, G, B, G, B, G, B. Why? Because adjacent में भी same नहीं आ सकता. तो G के नीचे G नहीं आ सकता, G के नीचे B ही आएगा, B के नीचे G ही आएगा. So this is one possibility जहां पर blue is at the top left corner. And अब आपको थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए कि second possibility भी होगी जहां पर green is at top left corner. बस रिप्लेस करना है B को G से, रिप्लेस करना है, that's it. करेक्ट? दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी आंसर?
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि R cannot be selected, blue and green they can be selected. Yeah, what will be answer? एक तो ये configuration possible है, दूसरा ये वाला configuration possible है. That means there are only and only two configurations possible. So answer क्या आएगा? 2. How many of you have been able to correctly answer it? I wish and I hope that majority, at least 90% of the viewers have been able to successfully solve this question. बहुत ही simple question था, कुछ खास नहीं था, very simple. From CAT 2020 paper. Okay. Let us go to question number 2. What is the maximum possible number of red beads that can appear in any configuration? Please understand, we have to maximize red beads. Red beads को maximize करना है. कैसे करेंगे? तो पहले तो कॉन्फ़िगरेशन बना देते हैं. So this is our 5x5 grid. Okay, this is our 5x5 grid. We have to maximize red. So for example, if I put red here, where can I put the next red? I can't put here. Because I need one green, one blue. Then I can put a red here. Okay. Similarly, यहाँ नहीं रख सकते. ओके, नीचे आते हैं. यहाँ पर नहीं आ सकता रेड, यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर नहीं आ सकता. मेक सेंस? ओके, सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो में मैं यहाँ रेड रख सकता हूँ. सिमिलरली यहाँ नहीं, यहाँ रख सकता हूँ. यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है ना. फिर रेड में यहाँ रख सकता हूँ. सिमिलरली तो ये कैंसिल हो गए. दैट मीन्स यहाँ रेड रख सकता हूँ तो ये भी कैंसिल, और यहाँ रेड रख सकता हूँ तो कैंसिल. दीज आर द रेड्स दैट आई कैन मैक्सिमाइज. वी हैव टू मेक श्योर दैट एक रेड और दूसरे रेड के बीच में दो जगह हो. तो जस्ट चेक कर लो, सारे रेड एक ही कॉलम में या एक ही कॉलम में या एक ही रो में सारे रेड के बीच में दो जगहें होनी चाहिए. 2 places. सो आर और आर ये दो जगह खाली, आर और आर ये दो जगह खाली, आर और आर ये दो जगह खाली. सो यस, आई थिंक वी हैव मेड श्योर दैट किसी भी दो आर सेम कॉलम या सेम रो में दो जगह खाली होनी चाहिए. तो हाउ मेनी आर्स हैव वी यूज्ड? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो आंसर इज 9. There are 9, maximum of 9 red beads that we may have in a grid, in a configuration. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसान भी था. It was not at all difficult. अगर आपको ग्रिड का लॉजिक समझ में आ जाए तो that's very simple. You can crack it. Correct? चलिए, with that let's go to question number 3. This was question number 2. What is the minimum number of blue beads in any configuration? Minimum number of blue beads in any configuration. Please understand one thing. Let's say ये R है, ये G है और ये blue है. आपको blue को minimize करना है, इसका मतलब obviously बाकियों को maximize करना पड़ेगा. अगर आप चाहते हैं कि blue कम हो तो blue हटा के कोई और तो रखना पड़ेगा ना वहां पे. तो या तो आप red रखोगे या तो green रखोगे, तो दोनों या दोनों को आप ज्यादा बढ़ाओ. So we are thinking that अभी जो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, जहां पर हमने R को मैक्सिमाइज किया था, वैसा ही कुछ सोचते हैं. तो फिर से ग्रिड बनाते हैं. आर को मैक्सिमम हमने ऐसे किया था, पूरा डायगोनल आर से भरा था. फिर यहां पर आर था, यहां पर आर था, यहां पर आर था और यहां पर आर था. चलो, आर तो मैक्सिमम हो गया. जी को भी मैक्सिमम रखना है, जी को भी हमें मैक्सिमम रखना है. देखो, इन दोनों में तो एक जी और एक बी तो आने ही वाला है. इन दोनों के बीच में एक जी और एक बी तो आने ही वाला है, राइट. सो अगर मैं
मिनिमम ब्लू करना है ना अपन को, वी हैव टू फाइंड मिनिमम ब्लू। सो अगर मैं इनके बीच में एक ब्लू रख दूं, लेट्स से ये ग्रीन, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये ब्लू और ये ग्रीन, करेक्ट? क्योंकि मुझे एक ब्लू और एक ग्रीन 2 आर के बीच में रखना था फॉर श्योर। यहां पर हम ब्लू नहीं रखेंगे बिकॉज कंडीशन था 2 ब्लू के बीच में एक एटलीस्ट जी होना चाहिए। अगर आपको एक ही रो में या एक कॉलम में 2 ब्लू यूज करने हैं तो आपको एक ग्रीन एटलीस्ट उनके बीच में डालना पड़ेगा। तो हम तो ब्लू को मिनिमम करना चाहते हैं, हम तो ब्लू को मिनिमम करना चाहते हैं। चलो इसको भी जी ले लो, इसको भी जी ले लो, इधर ब्लू दे दो। याद रखना है कि रेड के आजू बाजू रेड नहीं आना चाहिए, ब्लू के आजू बाजू ब्लू नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। तो ये ग्रीन रेड ग्रीन ब्लू ये हो गया, ठीक है। अब बचाइए, इन दोनों को ग्रीन कर दीजिए, इन दोनों को ग्रीन कर दीजिए। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों में आप 2 जी रख नहीं सकते, इसका मतलब यहां पर दोनों में हमें ब्लू रखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर आप ब्लू रख दीजिए क्योंकि ये ग्रीन है, यहां पर आप ग्रीन रख दीजिए और यहां पर भी ग्रीन रख दीजिए। यहां पर आप जी है तो ये बी आएगा, ये जी और ये भी जी। आई थिंक नाउ वी हैव मेड श्योर दैट ब्लू आर एज लो एज पॉसिबल, मिनिमम एज पॉसिबल। कितने ब्लू हैं देख लीजिए, हर रो में गिन लीजिए। यहां पर 1 2 3 4 5 6, there are 6 blues and hence the answer is 6. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, करेक्ट। इट ड्रॉज फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको ये थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन 3 में क्वेश्चन 2 का डेटा यूज कर सकते हैं तो वी विल हैव टू डू दैट। अगर क्वेश्चन 3 में क्वेश्चन 2 का डेटा यूज कर सकते हैं तो वी विल हैव टू डू दैट, इट विल हेल्प अस। सो प्लीज अंडरस्टैंड, मेमोरी इज इंपॉर्टेंट। Memory of the answers or the questions that you just have seen previously, इतना मेमोरी आपको रखना पड़ेगा कि यार ऐसा कुछ हमने अभी पिछले क्वेश्चन में तो नहीं किया। क्योंकि मेनी टाइम्स वी हैव सीन दैट क्वेश्चंस का डेटा आगे यूज होता है या फिर क्वेश्चन को आपने जिस तरीके से सॉल्व किया है वो सोल्यूशन आगे यूज होता है। वी हैव सीन दैट मेनी टाइम्स। सो प्लीज अंडरस्टैंड, कीप अ शॉर्ट टर्म मेमोरी of the whole set that you have just solved or the question that you have just solved, right? Okay, that was question 3. Let us move on to question number 4 now. 2 red beads have been placed in second row third column and third row second column. How many more red beads can be placed so as to maximize the number of red beads? देखो रेड को मैक्सिमम करने का लॉजिक अपन को आता है, 2 प्लेस छोड़ के रेड डाल दो। तो चलो पहले ग्रिड बना देते हैं। ऑलराइट, सो अपना ग्रिड तैयार है। नाउ उन्होंने 2 रेड ग्रिड दिया हुआ है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब ये आर है। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये भी आर है। देखिए ये आर है तो हम इनको आर नहीं रख सकते, ओके। यहां पर आर नहीं आ सकता, राइट। इधर भी आर नहीं आ सकता, इधर भी आर नहीं, इधर भी कहीं आर नहीं आ सकता, यहां पर भी आर नहीं आ सकता, ओके। यहां पर भी आर नहीं आ सकता और यहां पर भी आर नहीं आ सकता फिलहाल, क्योंकि 2 आर के बीच में कम से कम 2 जगह रखनी है। आइदर लाइक दिस, देखिए आइदर लाइक दिस आर डैश डैश आर और आर डैश डैश आर, ऐसा चाहिए अपन को। चलो आर इधर है तो यहां आर आ सकता है, और अगर यहां आर है तो यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आर यहां तो यहां नहीं आ सकता, एक आर यहां आ सकता है, तो ये गया, ओके। ये 2 जगह खाली है तो एक आर यहां आ सकता है, एक आर यहां आ सकता है, तो ये गया। एक आर यहां आ सकता है और एक आर यहां आ सकता है। दिस इज द पॉसिबिलिटी। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8।
Answer is 8. Answer is 8. ब्यूटीफुल क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन, करेक्ट. प्योर लॉजिक और कुछ नहीं, कोई ज्यादा बड़े बड़े फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ बड़े कैलकुलेशंस नहीं है. इट इज जस्ट पिक एंड प्लेस, ये पिक करके यहाँ डालो, ये पिक करके यहाँ डालो. जो हम बचपन में वो छोटे छोटे पजल्स किया करते थे ना, मिसिंग पीस ढूंढा करते थे, वैसे ही वाला पजल था. सो इट वॉज ऑल अलोंग इजी टू मॉडरेट, मोर ऑन द इजी साइड. दैट मीन्स लास्ट ईयर का कैट 2020 का स्लॉट 2 का क्वेश्चन है. दैट मीन्स ये क्वेश्चन उस स्लॉट में अटेम्प्ट जो भी बच्चा करने का था सबको करना चाहिए था, और शायद उसमें से 90% लोगों ने किया भी होगा. व्हाई? बिकॉज इट लुक्स easier, it feels easier, it actually is easier than the other sets. Correct? So that was a very interesting set. Now let us go to the next set. Set number 4. So this set I am bringing you to you from CAT 2019 paper. Okay? So this is an actual CAT 2019 question. Once again, very interesting question. Try to apply all the logic that we have we have developed so far. अगेन ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सो आपको सॉल्व करने में मजा आएगा इसको. सो द डेटा इज ऑन द स्क्रीन. A new game show on TV has 100 boxes numbered 1 to 100 in a row, each containing a mystery prize. The prizes are items of different types A, B, C in decreasing order of value. The most expensive item is of type A, a diamond ring, and there is exactly one of these. You are told that number of items at least double as you move to the next type. For example, there would be at least twice as many items of type B as type of A, at least twice as many items of type C as of type B, and so on. There is no particular order in which the prizes are placed in the box. Okay, so I've just read the data to you, but yes, I need to give you some time to process it. I need to give you some time to understand what it means. So what I'm going to do is I'm going to ask you to pause the video for 3 minutes and try to make sense of the data. क्या दिया हुआ है और उसके कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस बनाइए, समझिए डेटा को, उसके बाद वी विल गो टू द क्वेश्चन. सो पॉज द वीडियो फॉर 3 minutes एंड ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द डेटा. वी विल सी द क्वेश्चंस इन 3 minutes. Alright, so I hope by now you have developed a clear understanding of what the question means, what the data means, right? And you have tried to create some possible solutions as well. And don't worry if you have not got the idea of what this means. Pause the video once again. I'm giving you a pause. Pause the video right here, right now, and take 2 more minutes. Try to see what this means. Try to assume some values and you will be through. Okay, so let us go to the questions now. Question 1. What is the minimum possible number of different types of prizes? Minimum possible number of different types of prizes. So I will not give you the difficulty level of this question, but yes, I'm going to give you about 3 minutes maximum. And please understand, I'm being very generous with this one if I'm giving you 3 minutes. Ultimately, it may require only 1 minute for most of you to solve, but I'm giving you 3 minutes because it is possible that some of you might still not have understood the data. So take 3 minutes combined and try to solve this question. Pause the video, take 3 minutes, resume when you are done. Okay, so I hope by now you have made sure that you have solved this question. That was question 1. Let's go to question number 2. What is the maximum possible number of different types of prizes? In the first question, you are supposed to minimize. In the second question, you are supposed to maximize. So once again, do the same thing. If you have not understood the data, take 3 minutes. If you have understood the data, you might be able to take 2 minutes at max. Pause the video, try to solve the question. Only stop when you have got the answer, because this is that kind of question that most of you will be able to answer. Resume when you are done. Alright, so I hope by now you are done with question 2 as well. Let us go to question number 3. Which of the following is not possible? So interesting question. You've been given 4 scenarios. There are exactly 30 items of type B, exactly 75 items of type E, there are exactly 60 items of type D, and there are exactly 45 items of type C. So that's the question, question 3. I'm going to give you about 3 minutes. Pause the video, try to solve the question on your own, resume when you are done. Alright, so I hope by now you are done with question number 3. Let us go to the last question of this set. You asked for the type of item in box 45. Instead of being given a direct answer, you are told that there are 31 items of the same type as box 45
in boxes 1 to 44 and 43 items of the same type as box 45 in boxes 46 to 100. What is the maximum possible number of different types of items? Interesting question. Language difficult hai, question difficult nahi hai. I'm going to give you 4 minutes for this one, and that's huge. That's maximum. 4 minutes you should be able to get to the answer. So pause the video, take 4 minutes and resume when you are done. Okay, so I hope by now you're done with question 4 as well. This was a very nice, simple but yet smart question, right? The question will require you to be smart. Okay, let's understand the data once again. A new game show on TV has 100 boxes numbered 1 to 100. So let us visualize this thing. So let's say this is one box, this is another box, ऐसा करते 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 this is last box. This is box number 1, box number 2, box number 3, ऐसा करते करते this is box number 100. Okay, each containing a mystery prize. Okay, सबके अंदर एक mystery prize है जो हमें नहीं मालूम क्या है. The prizes are items of different types. Please understand, prizes are items of different types. A, B, C, D in that, in decreasing order of value. So we also got to know that A, B, C, D, E ऐसा करते 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 ये decreasing value है ये. For example, it could be like, let's say A is a gold chain, gold सोने की chain. B would be let's say एक छोटा सा टीवी. C would be let's say एक बहुत ही छोटा सस्ता सा मोबाइल फोन. D would be let's say banana. Correct? You got the idea that the value is decreasing. Okay. Now focus on this. The most expensive item is of type A, which is a diamond ring, and there is exactly one of these. A is a diamond ring. A क्या है? Diamond ring है. और ये एक ही है. There is only one item of A. There is only one item of A. Okay. You are told that the number of items at least doubles as you move to the next type. मतलब अगर मुझे B आइटम खरीदना है तो अगर ये 1 है तो ये कम से कम 2 होना चाहिए. एटलीस्ट 2. यहां लिख देता हूं मैं. Whatever it is, क्या फर्क पड़ता है. C जो है वो कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 4. D जो है कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 8 एंड सो ऑन. ये लॉजिक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए. ओके, इसको हटा देते हैं. Okay, for example, there would be at least twice as many items of type B as of type A. B A से at least twice होनी चाहिए. कम से कम 2 गुनी. कम से कम 2 गुनी. At least twice as many items of C as B. ठीक है. ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. इसको आप 2, 3, 4 बार पढ़ना. There is no particular order in which the prices are kept. इसका मतलब ये नहीं है कि let's say इसमें A ही है फिक्स, इसमें B है 2, फिर C है. ऐसा नहीं है. It's not like that. Okay, it is not like that. कहीं में भी randomly रखे हुए हैं चीजें. Okay. Now, it is possible that some of you still would not have understood what this exactly means. Okay. So I have thought of a different scenario. इसमें शायद आपको समझ में आ जाएगा. Let's say you are planning your birthday party. जब मैंने एग्जाम्पल बनाया था या फिर जो मैंने एग्जाम्पल सोच के सो सॉल्व किया था एक्चुअल कैट 2019 पेपर में, तब ऑब्वियसली कोविड नहीं था. सो आई हैड अज्यूम दैट नो कोविड गाइडलाइंस आर देयर, राइट? सो लेट्स से यू आर प्लानिंग योर बर्थडे पार्टी एंड यू आर इनवाइटिंग 100 गेस्ट्स. आप 100 गेस्ट को बुला रहे हो एंड दोज आर बेसिकली योर फ्रेंड्स. ओके, दोज आर बेसिकली योर फ्रेंड्स. नाउ आउट ऑफ दोज 100 गेस्ट्स देयर इज वन स्पेशल गेस्ट. इमेजिन कर लो आपका क्रश. ओके, इमेजिन कर लो आपका क्रश. वो एक स्पेशल है. इसका मतलब बाकी लोग स्पेशल नहीं है. सिंपल. सो देयर इज वन स्पेशल गेस्ट एंड देयर आर 99 ऑर्डिनरी गेस्ट.
There is one special guest, 99 ordinary guest. So one special guest, बाकी rest 99 are ordinary. Okay. Now obviously birthday party है, so you are also planning to give a return gift to all. ओके आप सबको रिटर्न गिफ्ट आपको देना है. यू वांट टू गिव रिटर्न गिफ्ट टू एवरीवन. आपने एक डायमंड रिंग खरीदी है ऑब्वियसली किसके लिए? आपके स्पेशल गेस्ट के लिए. ओके, सो यू बॉट वन डायमंड रिंग फॉर दैट वन स्पेशल गेस्ट. Okay, for that one special guest. And बाकियों के लिए you are supposed to buy other types of items. बाकियों के लिए you are supposed to buy other types of items of decreasing value. Obviously, अगर आप एक स्पेशल गेस्ट को आपने डायमंड रिंग दिया, फिर आप बोलोगे मम्मी मुझे दूसरी ये 5 लड़कियां भी हैं उनको भी डायमंड रिंग देनी है, तो मम्मी मारेगी आपको, है ना. सो एक डायमंड रिंग ले लिया है, बाकियों के लिए डिक्रीजिंग वैल्यू का गिफ्ट लेना है, डिक्रीजिंग वैल्यू का गिफ्ट लेना है. ठीक है, ओके. यहां तक कहानी क्लियर है? ये पूरा दिमाग में चल गया. ये पूरा हमने सिचुएशन चेंज कर दिया. पहले कुछ गेम शो था, अब ये हमारा बर्थडे पार्टी बन चुका है. और बर्थडे पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे बिकॉज दिस इज रिलेटेबल थोड़ा सा, आई होप. करेक्ट. चलो तो आगे बढ़ते हैं. इसको ही दिमाग में रख के हम लोग जाएंगे क्वेश्चंस के पास. क्वेश्चन, what is the minimum possible number of different types of prices? Please understand, आपको types को minimize करना है. You are supposed to minimize the types. Okay, not the number of gifts. Number of gifts 100 ही खरीदने हैं, types कम कर देने हैं. Okay, चलो हमने एक तो ले लिया है डायमंड रिंग. So imagine this in your head that you and your mom they go to the shopping. Okay, आपने मॉम को बोला मॉम एक डायमंड रिंग लेनी है. मॉम ने बोला ठीक है ले लेते हैं. बाकियों का क्या करें? सो आप बोलते हो मॉम तेल लेने गया, मिनिमाइज करते हैं, सबके लिए सेम ले लेते हैं. बाकियों से मुझे फर्क नहीं है, स्पेशल गेस्ट को डायमंड रिंग देना था, ले लिया. अब बाकी जो 99 है उनके लिए कोई भी एक आइटम ले लो ना. बी लेट्स से टिफिन बॉक्स. जनरली बच्चों के बर्थडे पार्टीज में रिटर्न गिफ्ट टिफिन बॉक्स होता है. तो आप बोले मम्मी काम करो, डायमंड रिंग एक ले लिया ना, बाकियों के लिए ना टिफिन बॉक्स ले लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सबको सेम देना है. मुझे मिनिमम नंबर ऑफ टाइप्स खरीदने, मिनिमम नंबर ऑफ टाइप्स, मुझे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना. डायमंड रिंग में ही टाइम इन्वेस्ट करना था, बाकी तो ऐसे ही फ्रेंड्स है. सो दैट लॉजिक से आपने एक डायमंड रिंग खरीदा और 99 टिफिन बॉक्स खरीदे. इसका मतलब आपने कितने टाइप के आइटम्स खरीदे? 2 ही टाइप के आइटम्स. इसका मतलब है कि मिनिमम कितना पॉसिबल है? 2. सो मिनिमम टाइप्स कितने होंगे? 2 तो लेने ही पड़ेंगे. सो आंसर इज 2. एंड दिस इज ऑल्सो नो पेन क्वेश्चन. यहां पर पेन का जरूरत नहीं, सिर्फ दिमाग की जरूरत थी. दैट्स इट. दिस इज अ नो पेन क्वेश्चन. मिनिमम टाइप्स 2. एंड अब जाकर आपको थोड़ा सा लॉजिक भी समझ में आया होगा. मिनिमम टाइप्स 2. ओके, चलो आई होप लॉजिक इज क्लियर. बर्थडे पार्टी वाला लॉजिक. क्वेश्चन 2 पे चलते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइजेस? मैक्सिमम पॉसिबल. ओके, सो इमेजिन करो कि यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको लोगों को अलग अलग गिफ्ट देना पसंद है. तो आप चाहते हो कि एक स्पेशल इंसान को डायमंड रिंग तो मिले ही मिले, बाकियों को सबको सेम नहीं देना है. मुझे जितना पॉसिबल हो उतना अलग अलग लेना है. तो आप और मम्मी गए साथ में. सबसे पहले आपने मम्मी को बोला कि मम्मी चलो एक डायमंड रिंग खरीदते हैं. मम्मी ने बोला कि हाँ बेटा तेरी स्पेशल गेस्ट है तो पक्का खरीदते हैं, कोई बात नहीं. इट्स अ फॉरवर्ड थिंकिंग मम्मी, राइट. फिर आप बोलते हो कि मम्मी अब ना बाकी जो सारे के सारे 99 है ना, उसके लिए भी मुझे कुछ अलग अलग लेना है, बिकॉज मुझे सबको अलग अलग गिफ्ट देके सबको स्पेशल फील करवाना है. मम्मी एक थप्पड़ मारेगी, एक नहीं 100 थप्पड़ मारेगी कि पागल हो गया है बे, तेरा दिमाग घास चलने गया है. सबके लिए तुझे अलग अलग गिफ्ट चाहिए, इतना पर्सनलाइजेशन.
तो मम्मी क्या बोलती है कि तू तो गधा है, चल मैं तेरे को एक कंडीशन देती हूँ। कंडीशन क्या है, अगर तूने एक डायमंड रिंग खरीदी है तो तू नेक्स्ट वाला टाइप कम से कम तुझे 2 खरीदना पड़ेगा, 2, कम से कम 2। फिर अगर तूने 2 खरीदा है नेक्स्ट वाला आइटम, तो उससे नेक्स्ट वाला आइटम कम से कम 4, डबल कम से कम करना पड़ेगा। मम्मी का मैथ्स अच्छा है। तो आप बोलोगे ठीक है, बात तो माननी पड़ेगी, बस पैसे तो मम्मी ही दे रही है। तो आप गए, आपकी क्या सोच है कि सबके लिए जितना पॉसिबल हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिफ्ट खरीदना है। सो आप गए, आपने बोला, आपने सोचा कि मम्मी ये बी वाला कितना खरीदूं, मम्मी ने बोला कि कम से कम 2, कम से कम 2। तो आप कितना 2 ही खरीदोगे, बिकॉज आप 2 से ज्यादा खरीदोगे तो नीचे वाले डिफरेंट टाइप्स नहीं कर पाओगे। सो आप खरीदोगे 2 इसको। फिर आप गए सी वाले आइटम के पास, कितने खरीदोगे, कम से कम 4। फिर डी वाले आइटम कितने खरीदोगे, कम से कम 8। फिर ई वाली आइटम ABCDE वो कितनी खरीदोगे, कम से कम 16। फिर ई के बाद F वो कितनी खरीदोगे, कम से कम 32। अब आपकी मम्मी ने रोका कि ए गधे रुक 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 रुक, कितने गिफ्ट हुए काउंट करो। तो आप काउंट करने बैठे कि भाई ये हो गया 7, 15, 15, ये 31, 31 और ये 63। आपने बोला मम्मी 63 गिफ्ट हो गए, 63। तो मम्मी क्या सोचेगी कि अच्छा 100 लोगों की गिफ्ट चाहिए थी, उसमें से 63 लोगों के गिफ्ट आ गए, तो कितने लोगों के बचे, 37 लोगों के गिफ्ट बचे। क्या मैं नेक्स्ट आइटम 37 ले सकता हूं? आप मम्मी को पूछ रहे, मम्मी 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 प्लीज अपना रूल तोड़ दो ना प्लीज, मुझे एक और टाइप लेने दो, 37 एक टाइप। और अब तक मम्मी आपकी ये जो अलग अलग डिमांड्स है ना उससे फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही है कि भाई लेना जितना लेना है, कंडीशन फॉलो कर बस। तो नाउ यू आर थिंकिंग, क्योंकि मैथ्स तो आपका भी थोड़ा सा अच्छा है मम्मी की वजह से, सो नाउ यू आर थिंकिंग कि यार एफ जो मैंने 32 लिया ना, तो अब मैं नेक्स्ट आइटम 37 तो ले नहीं सकता, 37 बच रहा है मेरा, तो मुझे वो सब सारा का सारा एफ में ही लेना पड़ेगा। सो एफ शुड बी 32 प्लस 37, 69। And then let's find out the sum. This is 7, 8, 15, 31, 31, 16, 100. Yes, this is done. Maximum हम कितने 6 टाइप्स ले सकते हैं. So the maximum types are 6 and answer is also 6. बहुत ही सिंपल लॉजिक. बर्थडे पार्टी, रिटर्न गिफ्ट, है ना? So I hope this is clear now. Question 2. Let us move on to question number 3. Which of the following is not possible? Please focus on the word not possible. जब भी ऐसे क्वेश्चन में नॉट, कैन नॉट, वुड नॉट ऐसा नॉट होना तो उसको पहले हाईलाइट ही कर दो पहले, या फिर लिख लो कहीं पे बड़े एकदम फॉन्ट में, अगर आपके पास रफ शीट है तो। कैट में भी अगर रफ शीट है तो लिख दो नॉट करना है भाई, ताकि लास्ट में भूल ना जाओ। आते हैं इस क्वेश्चन पे। There are exactly 30 types of item B and so on. So we have to make sure that these things are possible. हम क्या करेंगे, हर ऑप्शन को जिंदा करने की कोशिश करेंगे, और जो ऑप्शन जिंदा ना हो सके वही मरा हुआ है और वही फिर नॉट पॉसिबल है ना। तो चलिए ऑप्शन ए के पास आते हैं, उसमें थोड़ी सी सांस भरते हैं। ए बी सी डी, अभी मुझे नहीं पता कितनी टाइप्स खरीदनी पड़ेगी, लेकिन बोल रहे हैं बी में 30 है, ए 1 है मुझे मालूम है, बी 30 है, ओके। चलो अगर मैंने बी 30 लिया है तो सी कम से कम डबल लेना पड़ेगा, सी कम से कम डबल मतलब कम से कम 60, एंड ऑब्वियसली फिर मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, तो मुझे बाकी चीजें यही खरीदनी पड़ेंगी। कितनी, ये 31 है तो ये 69, सो डी का जरूरत नहीं है। सो ये है ऑप्शन ए विच इज पॉसिबल। चलिए ऑप्शन बी पे आते हैं, मतलब ये तो जिंदा हो गया तो ये आंसर नहीं है, कैन नॉट बी, ये नॉट पॉसिबल नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल है, ओके। बी ऑप्शन बोला देयर आर एग्जैक्टली 75 आइटम्स ऑफ टाइप ई। अच्छा तो देखिए ए बी सी डी ई, ए में 1, ई में 75, ओके। देखना ये पॉसिबल है कि नहीं। अभी ये लोग मिलके कितना हुए हैं, 76, ये लोग मिलके अभी तक 76 हुए हैं, 24 बाकी है, तो मुझे इनमें 24 डालना है। चलो इसमें डालता हूं मैं 2, इसमें 4, तो 24 में से 6 गया तो 18। देख लीजिए सब कुछ पॉसिबल है, सारे कंडीशंस फॉलो किए। ई भी 75 है, सो हाँ ये भी पॉसिबल है। ए को 1 रखा, ई को 75 रखा जैसे क्वेश्चन में दिया था। बी सी डी को मैंने ले लिया 2, 4 एंड 18, और हर जगह डबल तो हो ही रहा है, 1 का 2, 2 का 4, 4 से 18 तो डबल से आराम से बढ़ गया, 18 से 75 ये भी डबल से आराम से बढ़ गया। तो यस कंडीशंस आर फॉलोड, तो दिस इज आल्सो पॉसिबल, मतलब ये भी अपना आंसर नहीं है। सी पे आते हैं।
There are exactly 60 items of type D. So A1, B, C, D is 60. कुल मिलाकर ये 61 है, तो 39 मिसिंग है अभी तक, 39. B को अगर मैं 2 कर लूं और C को 37 कर लूं तो चलेगा? ये तो नहीं चलेगा, है ना? ओके, तो B को बढ़ा देते हैं. अगर मैं B को कर लेता हूं, लेट्स से इसको मुझे 60, मतलब ये कम से कम 30 होना चाहिए, तो इसको आप 30 कर लीजिए, तो कितना बच गया? 60, 31, तो ये हो जाएगा 9. अब देखो पॉसिबल है, ये 1 से 9 हुआ, मतलब डबल से तो आगे बढ़ गया. 9 से 30 तो ये भी डबल से आगे बढ़ गया. 30 से 60 तो ये डबल हुआ. तो हाँ, कंडीशंस फॉलो हो रही है और ये इसका सम 100 है, तो ये भी पॉसिबल है. इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो पक्का आंसर क्या होगा? डी ही होगा. बट फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं, डी वाला ऑप्शन यहां पर चेक कर रहे हैं. देयर आर एग्जैक्टली 45 आइटम्स ऑफ टाइप सी. चलो, ए है 1, बी नहीं मालूम, सी है 45. ओके, 45 का डबल नीचे 90 आ जाएगा. 45 का डबल नीचे 90 आ जाएगा, मतलब मुझे यहीं पे 100 को खत्म करना है, इस यहां पर ही 100 को खत्म करना है. मतलब ये फिगर 45 और ये 146, तो ये 54 होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल. सो यही एक जो है वो नॉट पॉसिबल है, मतलब यही है जो अपना आंसर है. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन. केसेस बहुत प्यारे से केसेस बन रहे हैं यहाँ पर, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है. करेक्ट. दैट वाज क्वेश्चन 3. हर एक ऑप्शन में जाकर इसको सॉल्व करना था. आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन 4. इस सेट का अगर मुझे कोई क्वेश्चन बोल रहा हूं मॉडरेट, तो इसको बोलूंगा मैं. समझते हैं. यू आस्क फॉर द टाइप ऑफ आइटम इन बॉक्स 45. सो देयर इज बॉक्स 45. चलो बना देते हैं. ये है बॉक्स 45 एंड लेट्स से उसमें टाइप है x. ओके, टाइप x, बिकॉज अभी मालूम नहीं ना a b c d, तो टाइप x. इंस्टेड ऑफ बीइंग गिवन अ डायरेक्ट आंसर देने की बजाय, ऑब्वियसली क्यों देंगे डायरेक्ट आंसर, ये पेपर ही ऐसे होते हैं, यहां पर घुमा फिरा के आपको क्लू दिए जाते हैं, आंसर तो आप ढूंढते हो. इंस्टेड ऑफ बीइंग गिवन अ डायरेक्ट आंसर, यू आर टोल्ड दैट देयर आर 31 आइटम्स ऑफ द सेम टाइप. 31 आइटम्स ऑफ द सेम टाइप एज बॉक्स 45 इन बॉक्स 1 to 44. मतलब ये जो 1 to 44 है ना, लेट्स से ये बॉक्स 1, ये बॉक्स 2, ये बॉक्स 44, इसमें 31x है. ओके, एंड 43 आइटम्स ऑफ द सेम टाइप एज बॉक्स 45 इन बॉक्सेस 46 to 100. मतलब ये 46 वाला बॉक्स और ऐसे करते 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 100 वाला बॉक्स. इसमें कितने आइटम्स हैं x वाले? इसमें है x 43, इसमें थे x 31. सो क्या आप मुझे टोटल x बता सकते हो? टोटल x, सो 31 प्लस ये 1, इसको तो गिना ही नहीं हमने, तो दिस इज 1 प्लस 43, सो दैट इज 70 and 5, 75. टोटल x 75 है. आपको क्या करना है? व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स? आपको बस वंस अगेन मैक्सिमाइज करना है, तो चलिए करते हैं मैक्सिमाइज. ए बी सी डी ई एफ जी, अभी तो नहीं मालूम ना कितना, हाईएस्ट 6 दिया हुआ है, तो मैं f तक जाऊंगा. चलो, अगर मैं इसको 1 लेता हूं, इसको 2, इसको 4, इसको 8, इसको 16, 1 2 4 8 16, और इसको ले लूं 75, क्योंकि मैक्सिमम आंसर 6 है, तो 7 का तो सेंस नहीं बनता. इनका सम कर दो. चलो, ये 75, तो ये लोग का सम होना चाहिए 25, तो ये खुद 24 नहीं, बढ़ गया. नॉट पॉसिबल. 6 इज नॉट पॉसिबल. 6 इज नॉट पॉसिबल. देखिए, 6 इज नॉट पॉसिबल. देख लीजिए, 100 सम नहीं हो रहा है, तो अब हमें ऑब्वियसली इसको हटाना पड़ेगा और यहां पर 75 डालना पड़ेगा. 5 पे सोचते हैं, 5 पे कैसे आंसर आएगा. सो दिस इज 75, दिस इज 1, सो ये लोग 24 होने चाहिए. सो ये 2, ये 4 और फिर ये 18. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, इससे पिछले के पिछले क्वेश्चन में नहीं, पिछले ही क्वेश्चन में.
सो मेमोरी आपको बहुत हेल्प आएगा। देख लो सारे कंडीशन फॉलो हो रहे हैं। हाँ देखो ये 75 है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, डबल भी हो रहा है सब कुछ एटलीस्ट, ये 1 का 2, 2 से 4, 4 से 18, 18 से 75 और कुछ कंडीशन वैलिड नहीं है, सो यस दिस इज पॉसिबल। सो मैक्सिमम आइटम्स कितने हो गए, ABCDE मतलब 5 टाइप्स है, आंसर इज 5। करेक्ट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक ही यही क्वेश्चन आई वुड से दैट इज ऑफ मॉडरेट डिफिकल्टी, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, कुछ क्वेश्चन बिना पेन से भी हो सकते थे। ओवरऑल ये सेट इजी टू मॉडरेट में थोड़ा सा इजी की तरफ था, सबको इसको अटेम्प्ट करना चाहिए और सबने इसके एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो क्रैक किए ही थे उसी ईयर में, राइट। सो दैट वाज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम CAT 2019। आई होप दैट वॉचिंग दिस सेशन हैज बीन फ्रूटफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमारे अगले सेशंस को आप जरूर देखेगा। सो इन द नेक्स्ट सेशंस यू विल बी सीइंग दैट वी आर स्टार्टिंग लॉजिकल रीजनिंग, राइट। सो लॉजिकल रीजनिंग के भी हम लोग पहले बेसिक्स देखेंगे और फिर CAT के क्वेश्चंस देखेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच देम एज वी आर moving towards a journey, right? So thank you for watching this video.